Good morning. Myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अर्थात मध्य तंतु के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोटिलिटी के कंटिन्यूशन में है। द टॉपिक intermediate filaments may be divided or completed by some points. These are introduction, elements of cytoskeleton, structure and chemistry of intermediate filaments, types of intermediate filaments, connections between intermediate filament network and actin filaments or microtubules, intermediate filament during mitosis, and function of intermediate filament and their relation to genetic disorder or their genetic diseases. Now first introduction. जैसा कि हम जानते हैं कि cytoskeleton is made up of three types of elements. These are microtubules, microfilaments and intermediate filaments. Now we emphasize on third element, that is intermediate filament. Now introduction about intermediate filament. Intermediate filaments, as the name indicates, they are intermediate in thickness 10 nanometer between microtubules, which are 20 to 30 nanometer thick, and actin filaments, which are 5 to 7 nanometer thick. They were discovered in 1950s in proteins called keratinins that are found in hairs. अर्थात इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और मध्यस्थ तंतुओं की मोटाई 10 नैनोमीटर सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूबल्स तथा एक्टिन फिलामेंट्स की मोटाई के मध्य में होने के कारण इन्हें मध्यस्थ तंतु कहते हैं, इनकी खोज 1950 के दशक में बालों में पाए जाने वाले केराटिन नामक प्रोटीन में द्वारा की गई। Now in most cells they have a half life of 1 hour or less and make 1% of total proteins, although it can reach up to 85% in epidermal keratinocytes and neurons. अर्थात अधिकांश कोशिकाओं में ये कुल प्रोटीन का 1% भाग बनाते हैं, जब यद्यपि एपिथेलियल केराटिनोसाइट्स तथा न्यूरॉन में ये कुल प्रोटीन का 85% भाग बनाते हैं। In humans, there are 50 different intermediate filaments genes which are differentially expressed in different types of cells. अर्थात मनुष्यों में 50 या उससे अधिक विभिन्न इंटरमीडिएट फिलामेंट जीन पाए जाते हैं, जो शरीर की भिन्न कोशिकाओं में अलग रूप से प्रदर्शित होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Each basic unit of intermediate filament consists of a dimer composed of 2 alpha helical chains oriented in parallel and intertwined in a coil rod. अर्थात प्रत्येक मध्यस्थ तंतु में 3 या 4 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 2 प्रोटोफिब्रिल्स उपस्थित होते हैं। एक प्रोटोफिब्रिल 2 डाइमर्स से बना होता है। प्रत्येक डाइमर में 2 अल्फा हेलिकल चैन पाई जाती हैं, जो
कुंडलिनी छड़ का निर्माण करती हैं। Four dimer associated in a anti-parallel half staggered manner to produce protofibrils, and 3 to 4 such protofibrils intertwine to produce an apolar intermediate filament 10 nanometer in diameter, as shown in figure। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि 4 डाइमर अर्ध सांतरित विपरीत समानांतर क्रम में संगठित होकर एक प्रोटोफिब्रिल का निर्माण करते हैं तथा इस प्रकार से 3 से 4 प्रोटोफिब्रिल आपस में मिलकर 10 नैनोमीटर डायमीटर वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट का निर्माण करते हैं। Intermediate filament can unique properties. For instance, interfilaments of hair and epidermal cells are highly insoluble. On the other hand, intermediate filaments of nuclear lamina lining the inner surface of the nuclear membrane and also those of फिब्रोब्लास्ट आर सोल्यूबल। अर्थात बाल हेयर्स तथा एपिडर्मल सेल्स के इंटरमीडिएट फिलामेंट उच्च रूप से घुलनशील होते हैं, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आंतरिक सरफेस को घेरने वाले न्यूक्लियर लेमिना और फाइब्रोब्लास्ट घुलनशील होते हैं। इस प्रकार इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यूनिक प्रॉपर्टी में पाई जाती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ morphology and localization within the cell, the intermediate filaments have been grouped into 4 main types. किसी कोशिका में आकारिकी तथा स्थिति के आधार पर मध्यस्थ तंतुओं को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट इज क्रेटिन फिलामेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज टोनोफिलामेंट्स और प्री क्रेटिन और साइटोक्रेटिन। These are the most complex type of intermediate filaments. They are found in epithelial cells where they are anchored to the cell surface and converge upon desmosome. Cretin filament इंटरमीडिएट फिलामेंट का सबसे जटिल प्रकार है, जो कि एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है, जहां से ये सेल सरफेस में धंसकर डेस्मोसोम के ऊपर अपसारित होते हैं। सेकेंड टाइप न्यूरोफिलामेंट्स टुगेदर विथ माइक्रोट्यूबल्स। They form the main constituents of axon, dendrites and neural perikaryones. अर्थात तंत्रिकीय तंतु जो माइक्रोट्यूबल्स के साथ मिलकर एक्सोन, डेंड्राइट्स एंड न्यूरल न्यूक्लियस के मुख्य अवयवों का निर्माण करते हैं। थर्ड टाइप ग्लियल फिलामेंट्स आर फाउंड throughout the cytoplasm of astrocytes and are composed of a highly acidic proteins. अर्थात ग्लाइल फिलामेंट तारा कोशिका एस्ट्रोसाइट्स के संपूर्ण साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं और अत्यधिक अम्लीय प्रोटीन के बने होते हैं। फोर टाइप्स इज heterogeneous filaments contain different proteins such as jasmin found in smooth skeletal and cardiac muscle, vimentin found in cells of different origins, and cinnamon found in skeletal muscle. अर्थात
हिट्रोजीनस फिलामेंट्स जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जैसे डेस्मिन, वेमिटिन एंड सिनेमिन पाए जाते हैं। ये मुख्यतः स्मूथ स्केलेटल एंड कार्डिक मसल में उपस्थित होते हैं। नाउ connection between intermediate filament network and actin filaments or microtubules. The protein plectin plays an important role in establishing connections between intermediate filament, microtubules, actin, myosin and membrane bound adhesion sites. अर्थात प्लेक्टिन नामक प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स, एक्टिन, मायोसिन एंड मेम्ब्रेन्स से घिरे एडेशन पॉइंट्स के मध्य संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस intermediate filament undergo reversible disintegration and restoration। अर्थात समसूत्री विभाजन के दौरान इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में रिवर्सिबल विघटन तथा पुनः स्थापन क्रिया होती है। फॉर देयर आर ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइन bridges of fibrillar material between microtubules and intermediate filaments। कुछ गति प्रकारों में इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोट्यूबुल्स के साथ संबंध बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सोन, माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट लाई इन क्लोज proximity and both seem to be involved in flow of material through an axon। अर्थात एक्सोन में माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एक दूसरे के समीप रहते हैं तथा एक्सोन में पदार्थों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड देयर रिलेशन टू जेनेटिक डिजीजेस। इन सेवरल केसेस diseases in human and mice were associated with disturbances in the assembly of intermediate filament। अर्थात मध्यस्थ तंतुओं के संगठन में बाधा उत्पन्न होने के कारण मनुष्य और चूहों में अनेक प्रकार के रोग पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल some skin diseases were found to be associated with mutation in keratins, which is intermediate proteins, for which there are 30 different genes in human genome। अर्थात क्रेटिन में परिवर्तन होने पर कुछ त्वचीय रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसके लिए मनुष्य जीनोम में 50 विभिन्न जीन उत्तरदायी होते हैं। Such as mutation in the genes for K14 and K15 keratins were also identified in a human genome skin disorder called EBS, which led to disturbance in intermediate filaments assembly। अर्थात K14 एंड K15 केराटिन के लिए जीन में होने वाले म्यूटेशन के कारण EBC एपिडर्मोलाइसिस ब्लोसा कॉम्प्लेक्सेस नामक त्वचीय रोग उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑर्गेनाइजेशन में बाधा उत्पन्न होती है। सिमिलरली म्यूटेशन इन जीन्स फॉर K1 or K10 resulted in skin disorder called epidermolytic hyperkeratosis, that is EH, and those in K9 resulted in EPPK। अर्थात K1
और K10 के लिए उत्तरदायी जीन में इसी प्रकार के परिवर्तन होने पर EH अर्थात एपिडर्मोलाइटिक हाइपरकेरेटोसिस नामक त्वचीय रोग उत्पन्न होता है तथा K9 में होने वाले एपिडर्मोलाइटिक पल्मोप्लानर केरेटोडर्मा दैट इज EPPK नामक रोग होता है। Abnormal accumulation and disorganization of neurofilaments also results in a number of motor neuron disease including ALS, infantile spinal muscular atrophy and hereditary sensory motor neuropathy। अर्थात तंत्रिका तंतु न्यूरॉन्स में एबनॉर्मल जमाव और संगठन में कमी के कारण अनेक प्रकार के प्रेरक त्वचीय तंत्रिकीय रोग होते हैं जिनमें ALS अर्थात एमीस्टाफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, इन्फेंटाइल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एंड हेरिडिटी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। Similarly, absence of muscle specific intermediate filament protein desmin causes cardiovascular lesions and skeletal muscle myopathy in as shown in mice। इसी प्रकार पेशीय विशिष्ट डेस्मिन नामक इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन की कमी हृदय वाहिका घाव तथा पंजरीय शिरा मायोपैथी नामक रोग उत्पन्न करती है जैसा कि माइस में या चूहे में देखा गया। धन्यवाद।